حاضرین مجلس، ہم لوگ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ رہے تھے۔ آج ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ یمن کے رہنے والے تھے، جو کہ یمن آج اگر ہم دیکھیں مکہ سے جو یمن کا جو کیپٹل سٹی ہے صنعا، لگ بھگ 800-850 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے یمن۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی تاریخ بھی الگ ہی ہے۔ ایک مرتبہ یمن کا ایک قبیلہ ہے، قبیلے دوس، اس قبیلے کے سردار طفیل بن عمرو دوسی مکہ آتے ہیں۔ قدیم زمانے میں بھی جو ہے کعبۃ اللہ کا طواف کیا جاتا تھا، حج کیا جاتا تھا، تو وہ طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے یہاں پر مکہ آتے ہیں۔ تو بہت بڑے وہ شاعر تھے، بہت بڑے سمجھدار تھے، پڑھے لکھے تھے۔ تو مکہ کے سرداروں کو پتا چلا کہ یمن سے قبیلہ دوس کے سردار طفیل بن عمرو دوسی مکہ آ رہے ہیں، تو جیسے مکہ میں داخل ہوئے فوراً کو پکڑ لیا، کہا کہ دیکھو یہاں پر ایک جادوگر ہے، اس سے ملاقات نہیں کرنا۔ ایک جادوگر ہے، ایک شاعر ہے جس کو محمد کہا جاتا ہے، اس سے تم ملاقات نہیں کرنا، اگر ملاقات ہو نہ تو پھر تم پر جادو ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان کی بات بھی نہیں سننا، کانوں میں روئی رکھ لے کر تم طواف کرنا، ان سے ملاقات نہیں کرنا۔ اس طرح کی بات مکہ کے سرداروں نے طفیل بن عمرو دوسی کے ساتھ کیا، اور وہ طواف کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو ہے تلاوت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے سوچا کہ بھائی میں تو سمجھدار آدمی ہوں، میں تو ادیب آدمی ہوں، میں تو شاعر آدمی ہوں، کیا صحیح کیا غلط سمجھ میں آتا ہے مجھے، ذرا دیکھو تو صحیح کیا کرتے ہیں، یہ کیا پڑھتے ہیں، کیا سناتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے کان سے روئی نکال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس ملاقات کر کے قرآن سنا، تو اسی وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ طفیل بن عمرو دوسی اب رضی اللہ عنہ بن جاتے ہیں، اور کہا اللہ کا رسول میں پہلے جاؤں گا اپنے قبیلے کے پاس اور ان کو اسلام کی دعوت دینا چاہوں گا۔ تو اللہ کا رسول نے کہا بالکل جاؤ، اپنی اسلام کو دعوت دے دو۔ تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے قبیلے کو جاتے ہیں، سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، باپ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ پھر اپنے امی کے پاس جاتے ہیں اور اپنی امی کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو ان کی امی اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ پھر اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور بیوی کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو بیوی اسلام قبول کر لیتی ہے۔ اس کے بعد قبیلے کے پاس جا کر دعوت دیتے ہیں، تو قبیلے والوں نے کوئی بھی اسلام قبول نہیں کیا، آپ کی بات نہیں مانے۔ جب آپ کی بات نہیں مانے تو آپ غصہ آ جاتا ہے، اور پھر اسی وقت اللہ کے رسول کے پاس واپس لوٹ کر مکہ آتے ہیں اور کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے والد کو دعوت دی، اسلام قبول کر لیا، والدہ کو دعوت دی، اسلام قبول کر لیا، بیوی کو دعوت دی، اسلام قبول کر لیا، لیکن میرے قبیلے والے اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ میرے قبیلے والوں کو فتویٰ دیجئے، آپ میرے قبیلے والوں کو بدوا دیجئے۔ اب صحابہ کرام پریشان کہ بھئی اللہ کو اگر بدوا دیں گے تو پھر پورا قبیلہ تباہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کی بات سن کر مسکراتے ہیں اور دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اہد دوسا، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت نصیب فرما، اور ہدایت کے ساتھ ان کو ہمارے پاس لے کر آنا۔ آپ دعا دیتے ہیں قبیلے والوں کو، تو آپ پھر واپس لوٹ کر قبیلے والوں کو دعوت دی، تو پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اور اسی میں اسلام قبول کرنے والے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آ رہے ہیں، اور سن 7 ہجری کا جو ہے آس پاس جو ہے یہ واقعہ ہے۔ سن 7 ہجری میں اللہ کا رسول جنگ خیبر میں جو وہاں پر مصروف تھے، سیدھا یمن سے اللہ کا رسول کے پاس ملاقات کی، اور وہاں پر پھر دوبارہ کلمے کی تجدید کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل ساتھ رہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا صرف 1 2 3 4 سال موقع ملا بس۔ اس 4 سال کی مدت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا رسول اتنا علم حاصل کیا کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں نا، وہ سارے کے سارے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5374 हदीसों के माशाल्लाह मालिक हैं। यानी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बगैर हमारी नमाज पूरी नहीं हो सकती। यानी हमारी नमाज को पूरी होने के लिए जितने अहकामात हैं वो सारे के सारे अहकामात में हजरत अबू हुरैरा की हदीस बीच में आ जाती है। अगर आप जो है रोजे के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो हजरत अबू हुरैरा के बगैर कोई हदीस मुकम्मल, मतलब रोजे के मसाइल पूरे होते ही नहीं। हज के मसाइल इनकम्प्लीट, ज़कात के मसाइल इनकम्प्लीट। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का योगदान तालीम के इमदाद में सबसे ज्यादा है। और आपकी वालदा इस्लाम कबूल नहीं किए भी और अल्लाह के रसूल को बुरा भला बोलती रहती हैं। तो हजरत अबू हुरैरा को जो है बुरा लगा और नबी के पास आकर कहते हैं अल्लाह के रसूल, आप जो है मेरी वालदा आपको बुरा भला कहती रहती है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, आप मेरे वालदा के हक में दुआ करें कि वो इस्लाम कबूल करे। तो अल्लाह के रसूल ने दुआ दी, अल्लाह अबू हुरैरा की वालदा को हिदायत नसीब फरमा। तो ये सुनते ही वो खुश हो गया और समझे कि अल्लाह के रसूल की दुआ जरूर कबूल होने वाली है। घर को जाकर देखते हैं तो वालदा यानी गुस्ल कर रही हैं, गुस्ल के बाद कलमा पढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिर अल्लाह के रसूल के पास वापस लौट कर आ रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह की जिंदगी बहुत ही गुर्बत की जिंदगी, इतनी गुर्बत में रहते हुए भी इतनी तालीम हासिल करना, इससे पता ये चलता है कि गुर्बत तालीम रुकावट नहीं बन सकती। आज के दौर में अगर कोई आदमी तालीम हासिल करने का जज्बा उसके पास है, तड़प उसके पास है, लगन उसके पास है, फिक्र उसके पास है, तो गुर्बत उसको रुकावट नहीं बन सकती, बहुत आगे बढ़ सकता तालीम के अंदर। जैसा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं भूख से बेचैन हो जाता था और जो है यानी इतने बेचैन हो जाता था, कभी बेहोश होकर गिर जाता था। लोग समझते थे कि मतलब ये बीमार है, लेकिन मैं भूखा रहता था। एक मरतबा बहुत भूख लगी थी और मैं चाहता था कि मुझे कुछ मिल जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद के बाहर जा रहे थे, मैं मस्जिद के पास बैठकर पूछा एक ऐसी आयत के बारे में जिसमें खिलाने पिलाने का तस्करा है, तो उन्होंने उस आयत का जवाब देकर आगे निकल गए। मैं चाहता था कि इस आयत को सुनकर वह समझें कि मुझे भूख लगी है, लेकिन नहीं समझ पाए। फिर उनके बाद उमर फारूक गुजरे, मैंने वही सवाल उनसे भी किया, वो भी सवाल को नहीं समझ सके, जवाब देकर आगे निकल गए। फिर नबी गुजरे तो मैं नबी से पूछा तो अल्लाह कर समझा कि हाँ ये तो भूखे हैं। अल्लाह के रसूल चलो मेरे साथ खाना खा लो। अल्लाह के रसूल घर को लेकर जा रहे हैं और पूछा घर में क्या है, कहा एक जो है बस प्याला जो है दूध का है और वो मुझे बहुत भूख लगी हुई है, शिद्दत की भूख लगी है, बस प्याला मिल जाए तो मैं पी लूं पूरा का पूरा दूध। इतने में अल्लाह के रसूल ने कहा अबू हुरैरा जाओ सुफ़ा वालों को बुला कर लेकर आओ। सुफ़ा वो सहाबा जो गरीब मिस्किन थे, जिनका कोई घर बार काम धाम कुछ नहीं था, तालीम हासिल करते थे और जब अल्लाह के ऊपर कुछ आता था उनको देते थे, सहाबा कुछ लाते उनको दे देते थे। गुर्बत की हालत में तालीम हासिल करने वाले सहाबा कराम से कहा आओ तुम लोग भी आओ। तो अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ा बुरा लगा, मुझे इतनी भूख लगी हुई, एक प्याला जो है दूध है और उसमें पूरे सुफ़ा वालों को बुला लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। लेकिन नबी का हुक्म था, ऑर्डर था, जाना था। मैं गया सुफ़ा वालों को लेकर आया और फिर सुफ़ा वालों को सब ऐसे गोल बिठा दिया। फिर नबी ने कहा जाओ उनको पहले पिलाओ। मुझे और ये लगा कि भाई मैं पहले हकदार था, मैं पहले आया था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मुझे देने में उनको पिलाया जा रहा है। कहा ठीक है उनको दिया और उनके बाद उनको 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 अल्लाह के रसूल सल्लम का ये प्याला वो सारे के सारे सुफ़ा वालों को दूध पिलाता है। आखिर में प्याला मेरे पास आया और मैं जो है अल्लाह के रसूल ने कहा अब पी लो। अब मैं जो है बिस्मिल्लाह कर पीता गया, पेट भरा। नबी ने कहा फिर पियो, फिर मैं पिया, फिर पियो, फिर अल्लाह के रसूल बस नो मोर, और नहीं हो सकता है। उसके बाद प्याला ऐसे ही बचा हुआ था। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने गुर्बत की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर इल्म हासिल कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल इंतकाल के बाद आप मस्जिद नबवी में लोगों को तालीम दे रहे हैं, हदीस समझा रहे हैं, हदीस की तालीम दे रहे हैं। और हदीस की तालीम देते 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 एक जो है ताबई थे। ताबई का मतलब ऐसा आदमी जो सहाबा से तो मुलाकात करते हैं लेकिन नबी से मुलाकात नहीं होती, उसको बोलते ताबई। सहाबी
नबी को देखा, नबी से मुलाकात किया, वो सहाबी हैं। ताबई नबी से मुलाकात तो नहीं करे, नबी को तो देखा नहीं, लेकिन सहाबा से मुलाकात हुई तो उसको ताबई कहते हैं। शागिर्दों में ताबई है जिनका नाम सईद बिन मुसय्यिब रहिमहुल्लाह है, और बहुत ही होनहार शागिर्द हैं। जरा भी वो मतलब जो है एब्सेंट नहीं हो रहे हैं, पूरे के पूरे अबू हुरैरा की हदीसें पूरे लिखने वाले, पढ़ने वाले। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की बेटी बड़ी हो रही है, आपने देखा मेरी बेटी का मुझे रिश्ता करना है, तो रिश्ता करना है तो उन्होंने अपने शागिर्द से पूछा कि मैं अपनी बेटी का निकाह में तुमसे करना चाहता हूं। शागिर्द ने कहा उस्ताद मैं कहां, आपकी बेटी कहां, मैं इस काबिल नहीं हूं। कहा नहीं, तुम ही इसके काबिल हो सकती हो। उस्ताद ने आगे बढ़कर अपने शागिर्द को बेटी की पेशकश की। इससे पता चला कि आदमी आगे बढ़कर अपनी बेटी का निकाह के लिए किसी नौजवान को पेशकश करना चाहे तो कर सकता है, इसमें ऐब की बात नहीं है। निकाह किया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी बेटी का निकाह अपने ताबई शागिर्द से किया, जबकि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु का घराना ऐसा कि उन्होंने रात के 3 हिस्से बना रखे थे। एक हिस्से में अबू हुरैरा जी बात कर रहे हैं, दूसरे से उनकी बीवी ये बात कर रही है, तीसरे हिस्से में उनकी बेटी ये बात कर रही है। घर कभी खाली नहीं, कभी बेटी पहले ही बात करती है, फिर अबू हुरैरा ही बात करते हैं, फिर बीवी ही बात करती है, कहीं बीवी पहले ही बात करती है, फिर आप ही बात करते हैं, फिर बेटी बात करती है। तो इस तरह पूरे के पूरा घराना इबादत में लगा हुआ घराना ऐसी बेटी को हवाले कर दिया सहाबी ताबई को। और वो ताबई इतने खुशनसीब कि माशाअल्लाह फिर उनको लड़की हुई। किनको लड़की हुई? सईद बिन मुसय्यिब को लड़की हुई। सईद बिन मुसय्यिब की लड़की अबू हुरैरा क्या होना? नवासी। हाँ, अबू हुरैरा को नवासी होना। अब सईद बिन मुसय्यिब वो भी बहुत बड़े मुहद्दिस सहाबा कराम, वो जो है ताबईन को तालीम दे रहे हैं, और तालीम देने के दौरान एक शागिर्द बहुत होनहार, बहुत ज़हीन शागिर्द जो है, चंद दिनों से वो शागिर्द गायब नजर आ रहा है, क्लास में नजर नहीं आ रहा है। तो जब आया शागिर्द तो पूछा भाई तुम कई दिनों से दरस में हाजिर नहीं हो रहे, क्या मसला है? कहा उस्ताद मोहतरम मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है, वालदा की खिदमत करने के लिए कोई नहीं है, मैं वालदा खिदमत कर रहा हूं और इसलिए मैं दरस में नहीं आ सका। तो सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह ने कहा कि भी तुम्हें निकाह कर लेना चाहिए था। तो शागिर्द ने कहा मैं इतना गरीब, इतना मुफलिस हूं कि मुझे कोई बेटी दे नहीं सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कौन बेटी मुझे बेटी देगा? तो उस्ताद ने कहा मैं तुम्हारा निकाह मेरी बेटी से करूंगा, मैं तुम्हारा निकाह मेरी बेटी से करूंगा। और सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह की बेटी के लिए रिश्ता वक्त के खलीफा की बेटे का आया था। बनु उमैया की जो हुकूमत चल रही थी, वो खलीफा ने अपने बेटे का रिश्ता पेश किया था अबू हुरैरा को कि मैं अपने बेटे से आपकी बेटी का निकाह मांगता हूं, रिश्ता मांगता हूं। तो आपने कहा नहीं, आपका बेटा मेरे बेटी काबिल नहीं हो सकता है। खलीफा का बेटा, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी काबिल नहीं हो सकता है। इनकार कर दिया, रद्द कर दिया। लेकिन एक शागिर्द होनहार शागिर्द को अपनी बेटी पेश करते हैं, निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद शाम में जो है जाकर विदाई करके वापस लौट के आ जाते हैं। उसके बाद फिर शागिर्द नहीं आ रहा है क्लास के अंदर। हाँ भाई, शादी होने से पहले तो गायब हो रहे थे, खिदमत करना है, फला करना है, अब निकाह हो चुका है तो अब दरस में हाजिर होना चाहिए, अब क्यों दरस में हाजिर हो रहे? मुलाकात पूछा भी क्यों हाजिर नहीं हो रहे हो? तो शागिर्द ने कहा उस्ताद से मोहतरम आपकी बेटी इतनी बड़ी मुहद्दिसा है कि जो आप पढ़ाते थे ना, बेटी आपकी मुझे पढ़ा रही है, फिर मुझे आपका जानने की जरूरत है? मुझे आपकी बेटी मुहद्दिसा है और जैसे आप पढ़ाते हैं आपकी बेटी वैसे मुझे पढ़ा रही है, तो लिहाजा मैं आपकी बेटी के पास पढ़ ले रहा हूं, अब आपके पास आना जरूरी नहीं है, कभी कभी आता रहूंगा। तो ये है मतलब अबू हुरैरा की नवासी, ये है अबू हुरैरा के दामाद, ये है अबू हुरैरा की बेटी। और ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माल तो नहीं दिया लेकिन इल्म की दौलत से नवाजा। अल्लाह ने हर सहाबी से अलग अलग काम लिया माशाल्लाह। किसी सहाबी को माल देकर काम लिया, किसी सहाबी को इल्म देकर काम लिया, किसी सहाबी को ताकत देकर काम लिया, किसी सहाबी को जो है मुजाहिद बनाकर जो है काम लिया, किसी सहाबी को फकीह बनाकर काम लिया, किसी सहाबी को कमांडर बना के काम लिया। हर सहाबी से अल्लाह ताला अलग अलग काम लेता रहा। लेकिन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
ان سے اللہ نے علم کا کام لیا. پورے کے پورے صحابہ کرام سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو صحابہ کرام کی زندگی کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے, صحابہ کرام کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.